नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से आंध्रा में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख अध्यक्ष एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक नई मुहिम छेड़ दी है। जहां आपको बता दें, बीते दिन गुरुवार को तिरुपति के तिरुमाला में दर्शन करने के लिए पहुंचे चंद्रबाबू नायडू अपने पूरे परिवार के साथ, नारा लोकेश, उनकी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ। और बता दें, उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने की शपथ ले ली है। और वेंकटेश्वर के दर्शन करने के बाद उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर, बता दें आपको, खास तौर पर यहां पर जगन मोहन रेड्डी को घेरा है और कहा देवस्थानम में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये काला बाजारी बंद करे, प्रसाद वितरण ठीक तरीके से हो, दर्शन करने के लिए जो यहाँ पर हिंदू दर्शनार्थी आए उन्हें अच्छे तरीके से सेवा मुहैया कराया जाए और टिकट लेकर ब्लैक करके बाजारों में बेच करके कोई दर्शन ना कर पाए। और हम इस जगहों पर यानी तिरुपति को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएं और हिंदू धर्म के रक्षा के लिए हम इसको आगे बढ़ाएं। आपको बता दें, उन्होंने मांस, मदिरा, इन सब पर भी रोक लगाते हुए कहा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने। जगन मोहन रेड्डी पर खूब बरसे और कहा कि जगन मोहन रेड्डी के कारण ये जगहों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मांस, मदिरा और यहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था को गहन चोट पहुंचाई गई है। लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। दर्शकों, चंद्रबाबु नायडू अभी किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। टीडीपी 16 लोकसभा सीटें और सूबे में వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వస్తానే కొండెక్కదని ఏం కనపడాలి? మీకు పవిత్రమైన భావం రావాలి. ఈ పవిత్రమైన భావం రావాలంటే ఇక్కడ అడుగడుగున ఆ పవిత్రమైన భావం రావాలంటే ఆ మూడింటి కలుగుతాయి. క్లియర్గా భోజనం కూడా, ప్రసాదం కూడా నీటిగా ఉండాలి. విపరీతమైన రేట్లు పెంచకూడదు. వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వస్తే దర్శనం బ్లాక్ మార్కెట్ లో టికెట్లు అమ్ముకోకూడదు. ఒకప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడికి వస్తే ఎంత క్లీన్ గా పరిశుభ్రం ఉండేది చూశాను. నేను కొండపైన పెద్ద ఎత్తున గ్రీనరీ పెట్టి, పెద్ద ఎత్తున ఔషధాల ప్లాంట్స్ అని పెట్టి ఇక్కడికి వస్తే లైఫ్ పెరగాలని ఆలోచించాను. అలాంటివన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒక దివ్య క్షేత్రం చేయాలంటే ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అదే చేశాం. ఇక్కడ ఒక దాన్ని ఏమన్నా నాకు అర్థం కాదు, కానీ ఒక వరస్ట్ ప్లేస్ గా తయారు చేయాలంటే ఏ విధంగా తయారు చేయాలో అన్ని తయారు చేశారు. ఎవరెన్ని మాట్లాడిన లెక్కలేతనం వచ్చింది. గంజాయి, అన్ని మత ప్రచారం, లేకపోతే లిక్కర్, నాన్ వెజిటేరియన్, విచ్చలవిడితనం, ఇష్టానుసారంగా వీడి యొక్క పైరులకు కేంద్రంగా తయారైపోయింది. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఊరూరు తిప్పేశారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. ఆలోచన ఏంటి? వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఒక పవిత్రమైన భావం, దేవుని కృప కావాలి. అలాంటిది పెళ్లిళ్ళు జరిగినా, పేరెంటాలు జరిగినా వెంకటేశ్వర స్వామి తీసుకుపోయి బైబిల్ చేసుకోండి. ఎక్కడిది విన్నారా ఎప్పుడన్నా? పట్టింది అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని మీ స్వార్థం కోసం అమ్మతారా? ఇష్టానుసారంగా పదవులు ఇచ్చుకుంటారా? పదవులు ఇచ్చేది ఎందుకు? ఆ పదవి ఇచ్చి ఆ పదవి ద్వారా మీ యొక్క కోర్టు కేసులు ఎవరు మీ పనులు చేసుకోవడానికి. ఎక్కడికి పోయారు మీరు? ఏమయ్యారు మీరు? అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండవసారి వేరే దేవుళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మలో మీ మీద పనిష్మెంట్ ఇస్తారు, కానీ వెంకటేశ్వర స్వామిని నేను చూసా. ఎవరైనా వెంకటేశ్వర స్వామికి అపకారం చేసిన వాడు, తలపెట్టిన వారు ఈ జన్మలోనే పనిష్మెంట్ తీసుకున్నారు. నేను తిరుపతిలో కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి లెక్కేసుకున్నాను. ఎవరైనా సరే, ఉద్యోగస్తులు కానీ, బయట వాడు కానీ, ఎవరైనా సరే దేవుడికి అపచారం చేసిన ప్రతి ఒక్కరు శిక్ష అనుభవించారు. ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఎందరో చేశారు. ఎర్రచందనాన్ని కూడా నేను గోడలో పెట్టాను, మీరు చూసినాను. గోడలో కూడా వెళ్ళకపోతాం. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్కే సీట్ ఇస్తే ఏం మాట్లాడతారు? చట్టాలు కూడా ఒక చేతులకు అప్పచెప్పేస్తున్నారు. చాలా ఉన్నాయండి, ఒకటి మాట్లాడడం కాదు.
చాలా ప్రక్షాళన చేయాలి. ఇంకా వీళ్ళ డబ్బులు రౌడీజం దీంతోనే రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ఏమీ జరగదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, దృఢ సంకల్పంతో వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా చెప్తున్నా, మంచిని ప్రోత్సహిస్తా, చెడును మాత్రం గట్టిగా తొలగలో వచ్చేస్తా. 135 सीटें जीतकर इतिहास बना चुकी है और यहां आज सरकार चलाने में, एनडीए चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों, यानी कि एन मतलब नीतीश, एन मतलब नायडू, दोनों एन फैक्टर से आज मोदी सरकार चमक रही है और एक बार फिर से विपक्ष पर बरस रही है। विपक्ष को दिक्कत इस बात की थी कि कैसे इन लोगों का बहुमत आ गया और कैसे हम इन लोगों को गिराएं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू को खींच सके, नीतीश कुमार को खींच सके, लेकिन नहीं खींच पाए। दोनों मजबूती के साथ खड़े हैं और इसी बीच आपको बता दें, जन कल्याण के नायक एक बार राज्य में बने उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, जिसको पीएम मोदी ने आंधी बताया है और उन्होंने कैसे तारीफ की है। कहा 2014 में ही, आपकी बातें याद है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 15 सालों तक राज करेंगे और आज ये हो रहा है। और देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह था दर्शकों, उसके पहले संसदीय दल की मीटिंग में पवन कल्याण को पीएम मोदी ने आंधी बताया था। तो कौन है पवन कल्याण, उसके बारे में खूब चर्चा हुई। उनके बाद उनकी रशियन पत्नी के बारे में भी लोगों ने सर्च किया। पवन कल्याण एक अभिनेता हैं और एक सुपरस्टार हैं और बता दें आपको इस बारे में, तेलुगु सुपरस्टार हैं और उनके भाई चिरंजीवी भी तेलुगु सुपरस्टार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एक बार फिर से उन्होंने बता दें आपको रमेश पोखरियाल जी का शुक्रिया अदा किया है और नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है। देखिए क्या लिख रहे हैं, माननीय श्री डॉक्टर आरपी निशंक जी, आपके भावपूर्ण संदेश, शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे संयुक्त प्रयासों से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा राज्य निश्चित रूप से सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छूते हुए जन कल्याण, समृद्धि, सामाजिक समरसता और आर्थिक सबलता के नवीन प्रतिमान गढ़ेगा। जय हिंद। अब देखिए, भारतीय होने पर इन्होंने कितना गर्व फील कराया, लिखा है जय हिंद। और देखिए, एक आत्मीयता झलकती है, एक हिंदुत्व झलकता है पवन कल्याण के अंदर से। विपक्षी पार्टी के होश इसलिए उड़े कि ये लगातार राम मंदिर के नाम पर, अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। और दर्शकों, कितनी शर्मनाक बात है, अगर अयोध्या के आसपास की विधानसभा बीजेपी हार गई लेकिन अयोध्या विधानसभा जीती है, तो ये क्या लगा रहे हैं कि देखिए राम ने इनको नकार दिया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की कुछ कमी हुई होगी तो लोग नाराज हैं, लेकिन ये लोग विपक्ष में बैठ करके इन्होंने कभी भी हिंदू धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाने से कभी भी इन्होंने पीछे अपने आप को नहीं रखा और लगातार हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाते हुए विपक्षी पार्टी को आज जरूर चंद्रबाबू नायडू की बातों से दिक्कत हुई होगी। आइए आपको बताते हैं, उन्होंने कहा देवस्थानन में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, एक एक को पकड़ा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू पूरे परिवार के साथ तिरुमाला पहुंचे थे, पूजा अर्चना की। नारा लोकेश, उनके बेटे, बहू और रिश्तेदारों के साथ तिरुपति के तिरुमाला वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ पूरे विधि विधिवत से पूजा अर्चना की है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार किए हुए पार्टियों को उन्होंने आड़े हाथों ली और कहा हिंदू धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बता दें, चौथी बार शपथ लेकर यहाँ धार्मिक यात्रा में सीएम नायडू तिरुमाला पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रशासन व्यवस्था खूब ध्यान रखे कि देवस्थान को शुद्ध किया जाए। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया है कि वेंकटेश्वर मंदिर की देखरेख वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीडीडी में अनियमितताएं जगन मोहन रेड्डी ने फैला दी थी और ये अनियमितताएं हो गई, टेनिटी हो गई और इसी वजह से ये जगह के आसपास में हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि हम तिरुपति में शुद्धि की शुरुआत करेंगे। दर्शकों, मतलब उन्हें लगता है कि ये अशुद्ध हो गया था ये स्थान और उन्होंने पाया कि अशुद्ध हो गया था, इसी वजह से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और देखिए, अगर आप बातचीत करें तो यहाँ पर आंध्रा में लोगों की ज्यादा भक्ति इधर से ज्यादा दिखती है। आपने देखा, पूजा पद्धति उनकी बहुत खास होती है। यही वजह है कि साउथ इंडियंस को भी लोग सराहते हैं और बता दें आपको, कहते हैं कि वहां की पूजा स्थिति बहुत अच्छी होती है, पूजा पद्धति अच्छी होती है। आपने देखा होगा, पूजा करने की विधिवत पूजा वो करते हैं, चाहे साउथ के सुपरस्टार हो और तेलुगु के सुपरस्टार हो। बता दें आपको, यहाँ पर बातचीत करना ये जरूरी है कि तिरुमाला को उन्होंने कहा कि अस्वीकार करेंगे हम, अगर अनियमितता है, विशुद्धि है तो हम अस्वीकार करेंगे। गोविंदा के नाम का ही केवल तिरुमाला में जाप रहेगा और किसी के नामों का जाप नहीं होगा। ब्लैक मार्केट में टिकट नहीं बिकना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने बोला दर्शन के लिए टिकट ब्लैक आज से बंद होगा, सभी को एक समान में। नशे का अड्डा हम देवस्थान को नहीं बनने देंगे। इसके साथ सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश को नंबर 1 राज्य 2047 तक बनाएंगे, ये कसम खाई है चंद्रबाबू नायडू ने।
कहा है कि मेरी सरकार आई है और हम एक बार फिर से कसम खाते हैं कि आंध्रा को हम नशा मुक्त, गरीब मुक्त करेंगे, अथक प्रयास करेंगे और भारत में नंबर 1 राज्य का दर्जा दिलाने में कामयाब जरूर होंगे। हम इसका संकल्प लेते हैं। संकल्प देखिए अच्छी बात है दर्शकों करना, और उसी बारे में लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। और देखिए आंध्रा में कमाल कर दिया है, कभी विधानसभा से उठकर चले गए थे पत्नी की बेइज्जती करने पर और रोए थे चंद्रबाबू नायडू। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते खराब हुए और वो कम समय के लिए था, लेकिन एक बावजूद भी एक बार फिर से दोनों वापस दिखाई दे रहे हैं। और बता दें आपको, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि नायडू तो किसी के नहीं है, कभी कांग्रेस के कभी किसी के, लेकिन आपको बता दें अभी उन्होंने कसम खाई है कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा और एनडीए के साथ रहूंगा। आपको बता दें उन्होंने बोला राजनीतिक साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तेलुगु लोग दुनिया के नंबर 1 लोग होंगे, आंध्र प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा, अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग अपराध करने के लिए हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इतिहास रच दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बन गई है। अभी देखिए कुछ कुछ जगहों पर जो लॉस हुआ उसकी भरपाई जरूर आंध्रा में और उड़ीसा में बीजेपी करती दिखाई दी। उड़ीसा में बीजेपी ने शानदार अपने बहुमत से यहां पर सरकार बनाई है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया और बता दें आपको मांझी को बनाया गया, एक आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को बनाया गया है और उनके पिता जबकि एक होम गार्ड हुआ करते थे, सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे। तो आज प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से ही राष्ट्रपति को उस स्थान पर पहुंचा दिया जिसके बाद उड़ीसा के लोगों में प्रधानमंत्री के लिए अलग प्यार है, अलग निष्ठा है और निस्वार्थ भाव से उड़ीसा के लोग प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आते हैं। और देखिए इटली गए G7 के मीटिंग में, अब देखने वाली बात होगी कितनी मजबूती से एनडीए सरकार चलती है। आपकी क्या राय है? हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात करके चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।